ایک ایسا نام جس کا ذکر سنتے ہی دلوں میں خوف اور نفرت کی لہر دوڑ جاتی ہے. ایک ایسا شخص جس کی تاریخ میں چھپی ہوئی خون کی دریا کی داستانیں آج بھی دنیا کے ہر کونے میں سنائی دیتی ہیں. ایڈولف ہٹلر وہ شخصیت جو دنیا کے سب سے بدترین تنازع کا سبب بنی، جس نے لاکھوں معصوم جانوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ انسان جو ایک معمولی سپاہی سے جرمنی کے چانسلر بننے تک کا سفر طے کرتا ہے اور پھر اپنی جنونی خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا کو آگ میں جھونک دیتا ہے. یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے اپنی سیاست اور نفرت کی بنیاد پر ایک نسل کشی کی، جسے ہولوکاسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ایک ایسا افریت جو ایک وقت میں پورے یورپ کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، لیکن جب اس کی طاقت کا سورج غروب ہونے کو آیا تو اس کا انجام بھی اتنا ہی دل دہلا دینے والا تھا. آئیے تاریخ کے اس سیاہ ترین باب کو دوبارہ کھولیں اور جانیں کہ آخر کیا ہوا تھا. وہ دن جب ایڈولف ہٹلر نے اپنی زندگی کا اختتام خود اپنے ہاتھوں کیا، ایک ایسی سرزمین میں جہاں سوویت فوج دروازے تک پہنچ چکی تھی اور وہ ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہا تھا جس سے بچنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کا کوئی مستقبل نہیں. ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1879 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا. اس کی تعلیم نہایت کم تھی. آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا. 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا اور فوج میں اس لیے ترقی حاصل نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی. 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نازی کہلائی. 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا. 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی. 1933 کے انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، مگر سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے صدر نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے یعنی چانسلر تک پہنچ گیا. چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ نازی پارٹی کا فروغ تھا. اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کا ہر حربہ آزمایا. طبی تجربات سے گزرنے والے رومانیہ کے لاکھوں مرد، خواتین اور کم سن بچوں کے قتل کا ذمہ دار ہٹلر ایک قوم پرست اور نسل پرست نظریات کا حامل تھا اور اس میں امتیازی سلوک اور خاتمے کی پالیسی تھی جس نے مختلف نسلی، سیاسی اور معاشرتی گروہوں کو متاثر کیا. 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنی. دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی زیر زمین پناہ گاہ میں اپنی نئی نویلی دلہن ایوا براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی. ہٹلر کے دور حکومت میں نازی جرمنی کے بیشتر حصے پر قابض رہا، جبکہ اس پر 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کے قتل عام کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جن میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے. یہودی ہٹلر کے ہاتھوں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہولوکاسٹ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مکمل جلا دینا. ہٹلر نے لاکھوں یہودی مرد، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ اشتراکیت پسندوں، پولینڈ کے مشترکہ قومیت کے حامل باشندے، رومانیوں، غلاموں، معذوروں، ہم جنس پرستوں، سیاسی اور مذہبی اقلیتوں کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. یہودیوں اور رومانیوں کو سینکڑوں میل دور بنائے گئے مقتل گاہوں پر جانوروں کی طرح کی ریل گاڑیوں میں ٹھونس کر گھیتوں منتقل کر دیا گیا، جہاں زندہ بچ جانے کی صورت میں انہیں گیس چیمبر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا. جرمنی کے تمام افسر شاہی اس عظیم نسل کشی میں پیش تھے جس نے اس ملک کو نسل کشی کے اڈے میں تبدیل کر دیا تھا. ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا.
तारीख की ये शख्सियत जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर डिक्टेटर के दर्जे पर फाइज हुई। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का लीडर एडोल्फ हिटलर 1930 के इंतखाबात में मुंतखब होकर जर्मनी का वजीर आजम यानी चांसलर बना। जर्मनी में आज भी वजीर आजम के दर्जे के ओहदे को चांसलर ही कहा जाता है। उस वक्त जर्मनी के सदर पॉल वान हैडेनबर्ग थे। 1934 में सदर पॉल वान हैडेनबर्ग के इंतकाल के बाद हिटलर ने अनाबलिंग एक्ट ऑफ 1933 के तहत चांसलर के ओहदे को सदारत के साथ जम कर दिया। हिटलर का ये इकदाम सरासर कानूनी था। तारीख के औराक को पलट कर देखते हैं तो हिटलर के ताल्लुक से कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें पता चलती हैं। उसकी शख्सियत को हमेशा मनफी नजरों से देखा जाता है, जबकि वो एक बहुत काबिल और दलेर इंसान था। लेकिन उसमें कुछ खामियां भी थीं जिसे मौरखीन ने ज्यादा नुमायां किया। मौरखीन के मुताबिक हिटलर एक निहायत ज़हीन, शातिर, अय्यार और जालिम अजियत पसंद खसूसियात का हामिल शख्स था। उसकी शख्सियत को करिश्माई शख्सियत कहा जाता है। जब वो लाखों के मजमे के सामने तकरीर के लिए खड़ा होता था तो गोया पूरे मजमे पर जादू कर देता था। अल्फाज हिटलर के लिए खिलौना थे और अंदाजे बयां इतना दिलचस्प कि मजमा महसूर होकर रह जाता था। हिटलर की मकबूलियत की बुनियाद इसकी पार्टी के नज़रियात थे और आइंदा चलकर इन्हीं नज़रियात की बना पर ना सिर्फ जर्मनी के दो टुकड़े हुए बल्कि इंसानी तारीख की बदतरीन शख्सियतों में हिटलर का शुमार हुआ। आज भी मगरबी अक़वाम के लिए हिटलर का नाम लानत तस्लीम किया जाता है। 1945 में हिटलर के खात्मे के बाद शायद किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखा हो। हिटलर के नाजी नजरियात जिनके सामने पूरी जर्मनी की कौम जिंदाबाद के नारे लगाती थी, उन नजरियात का कुफारा ये कौम अब तक अदा कर रही है और आज के जर्मनी की नस्ल अपने अजदाद की गलती पर आज तक शर्मिंदा और अक़वाम आलम के सामने तलबगारे माफ़ी बनी हुई है। यहूदियों का मानना है कि हिटलर ने जर्मनी और पोलैंड में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। इसी नस्लकुशी को यहूदी मर्गे अम्बोह के नाम से याद करते हैं। हिटलर के बारे में ये भी मशहूर है कि वो एक बहुत अच्छा पेंटर था। हिटलर के आखिरी अयाम के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने इस वक्त हिटलर के हालत को बयान करते हुए लिखा कि हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो गई थीं। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक मान पड़ चुकी थी। गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानिंद बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में क़याम के आखिरी दिन हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर किताब में मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं कि सवाल ये था कि इस शादी का इंतजाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गॉबल्स ने वॉल्टर वैगनर से शादी की थी। अब मसला ये था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। एक सिपाही बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन वो उनकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गए थे। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी। गॉबल्स ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बॉरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया। उनकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल की तारीख दर्ज थी, लेकिन यह तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था। लिहाजा उसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। शादी की दावत में हिटलर के दो जाती मुआवनीन, इनके सब्जी खोर बावर्ची बूरमन गोम्बल्स, मैगडा गोम्बल्स, जनरल कर्बस और जनरल बेगडरॉफ ने शिरकत की थी। एवा हिटलर की सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एवा ने उस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट लिया और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। उसने गॉबल्स की शादी भी याद की, लेकिन फिर अचानक उनका मिजाज बदल गया। उन्होंने कहा कि सब खत्म हो गया, सब ने मुझे धमकाया है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आमतौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शेव बनाने के बाद हिटलर ने अपने फौजी जर्नैलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम करीब है। सोवियत फौज किसी भी वक्त उनके बंकरों में घुस सकती है। रॉबर्ट पाइन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और इनसे पूछा कि क्या इसके साइनाइड यानी जहर के कैप्सूल काबिले एतमाद हैं। हिटलर ने उन गोलियों का तजर्बा करने के लिए उसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा।
ब्लोंडी की सेकंडों में मौत हो गई थी। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफा किया। उसके साथ उसकी अहलिया एवा ब्राउन भी थी। एवा ने गहरे नीले रंग का लिबास, उनकी किलाई पर प्लैटिनम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए उस वक्त जब हालात बहुत संगीन हो गए। मैग्डा गोबल्स ने चिल्लाकर कहा कि हिटलर को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि अगर इसे हिटलर से बात करने की इजाज़त दे दी जाए तो वो उसे ऐसा ना करने पर आमादा कर लेगा। गेरहार्ड बोल्ट अपनी किताब इन शेल्टर विद हिटलर में लिखते हैं कि हिटलर के बॉडीगार्ड गौंचे का कद 6 फुट 2 इंच था और वो गोरीले की मानिंद दिखता था। मैग्डा हिटलर से मिलने पर इतना इसरार कर रहे थे कि गौंजे ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। बॉडीगार्ड ने हिटलर से पूछा, क्या आप मैग्डा से मिलना पसंद करेंगे? हिटलर ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। यूं हिटलर ने अपनी जिंदगी का किस्सा तमाम कर लिया। हिटलर के आखिरी अयाम में जब जर्मनी के जवाल का वक्त करीब आया, उसने अपनी बका के लिए कई मुख्तलिफ तरीकों पर गौर किया। सोवियत अफवाज बर्लिन तक पहुंच चुकी थी और नाजी जर्मनी का खात्मा करीब था। एक मशहूर नजरिया ये भी है कि हिटलर ने खुद को बचाने के लिए किसी तरह की खुफिया प्लानिंग की थी, जैसे जनूबी अमेरिका या अंटार्कटिका की तरफ फरार की मंसूबाबंदी। हालांकि तारीख में ऐसा कोई हतमी सबूत नहीं मिलता, मगर मुख्तलिफ मुबसरीन ने इस बारे में कियास आराइयां की हैं। अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में अपनी जिंदगी का खात्मा किया। उसके बाद नाजी जर्मनी की शिकस्त यकीनी हो गई और यूरोप में जंग का खात्मा हुआ। तीसरी जंग अजीम का आगाज 1947 के करीब इस तरह से मुमकिन है कि अगर हिटलर ने अपने नजरियात को बचाने के लिए किसी और जगह पर अपना मरकज कायम किया होता तो उसका असर आलमी सियासत पर दूररस होता। हिटलर की मौत के बाद नाजी नजरियात और जंग के असरात यूरोप और दुनिया भर में जारी रहे, लेकिन आलमी ताकतों के दरमियान सर्द जंग का आगाज हुआ, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान शदीद कशीदगी थी। अगर हिटलर बच गया होता या उसके नजरियात किसी तौर पर आलमी सतह पर जिंदा रह जाते तो मुमकिना तौर पर तीसरी जंग अजीम का आगाज ज्यादा शिद्दत से होता, जो सर्द जंग की बुनियादों को मजीद आगे बढ़ाती। हिटलर की शख्सियत और नाजी नजरियात ने बाद में आलमी सियासत पर गहरे असरात छोड़े। अगरचे हिटलर की मौत के बाद नाजी पार्टी ख़त्म हो गई, लेकिन उसके नज़रियात और साम्राज्यी अज़ाइम का असर बरतानवी सल्तनत और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग में ज़ाहिर हुआ। तीसरी जंग अजीम के हवाले से कुछ तारीखी मफरूज़े ये हैं कि अगर नाजी जर्मनी का तख्ता ना पलटा होता या उसके नज़रियात कहीं और जिंदा रहते तो दुनिया को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ता, जिसमें एडोल्फ हिटलर का किरदार बतौर आलमी ताकत के एक धचके की सूरत में मौजूद होता। हिटलर की मौत के बाद उसके नजरियात और उसकी जानिब से की जाने वाली नस्ल कुशी, होलोकास्ट का असर आलमी सतह पर नुमायां था। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर मगरबी ममालिक और सोवियत यूनियन के दरमियान एक ताकतवर तसादुम की सूरत में सर्द जंग का आगाज हुआ, जो तकरीबन 45 साल तक जारी रही। इस दौरान हिटलर के नजरियात को हमेशा एक ड्राउनी यादगार के तौर पर पेश किया गया। अगर हिटलर बच जाता या नाजी नजरियात को कहीं और तकवीयत मिलती तो आलमी सियासत में इनकलाब आ सकता था, जिससे तीसरी जंग अजीम का इम्कान भी बढ़ता। यह हकीकत है कि हिटलर की मौत के बाद नाजी जर्मनी का मुकम्मल खात्मा हो गया, लेकिन आलमी सतह पर सियासी कशीदगी के हवाले से तीसरी जंग अजीम के इम्कानात हमेशा मौजूद रहे। मुख्तलिफ नजरियात और मफरूज़े ये हैं कि अगर हिटलर ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई मंसूबा तैयार किया होता तो उसके बाद आलमी सियासत में उसका असर आलमी जंग के नए मरहले की सूरत में नज़र आ सकता था। जैसे ही एडोल्फ हिटलर की मौत के साथ नाजी जर्मनी का खात्मा हुआ, दुनिया ने एक राहत की सांस ली। लेकिन तारीख ने यह साबित किया कि एक शख्सियत का खात्मा कभी भी नज़रियात का मुकम्मल खात्मा नहीं होता। हिटलर के जुनूनी ख्यालात, उसकी हिकमत अमली और उसकी जंगी पॉलिसियों ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगर हिटलर ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई खुफिया मंसूबा बनाया होता या उसके नज़रियात कहीं और जिंदा रहते तो शायद आलमी तारीख एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार करती। क्या नाजी नज़रियात की बाक़ियात दुनिया में एक नई जंग को जन्म देती? क्या आलमी ताकतों की कशमकश जो सर्द जंग की शक्ल में सामने आई तीसरी जंग अजीम की सूरत इख्तियार कर लेती? ये सवालात हमेशा के लिए खुले रहेंगे। आज हम इस मंजरनामे को सिर्फ तारीख के सफ़हात पर देखकर इन मफरूज़ों का तज्जिया करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एडोल्फ हिटलर की मौत के बाद भी उसके असरात का तसलसल आलमी सियासत
اور معاشرتی نظام میں گہرا اثر چھوڑ گیا۔ شاید ہم کبھی نہ جان پائیں کہ اگر وہ بچ جاتا تو تاریخ کے اوراق کس طرح پلٹتے، مگر ایک بات یقینی ہے، ہٹلر کا دور، اس کے نظریات اور اس کی تباہ کن جنگی حکمت عملیوں نے دنیا کے مستقبل کو ایک ایسا دھچکا دیا جس کا اثر ابھی تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کے سیاہ ترین ابواب کا مطالعہ صرف ہمیں ماضی کی غلطیوں سے آگاہ نہیں کرتا، بلکہ ہمیں یہ سیکھنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کو ایک بہتر مقام کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسی تباہی کا سامنا نہ ہو۔